Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you doing good and fine. So guys, let me welcome you guys in our next session of INMO flashback series. In this series, we are solving previous year INMO questions starting from year 2000, and we are solving one question in each video as we go along since the start of the session. So guys, so far we have solved INMO 2000 to INMO 2005, all the papers, all the years. And currently we are solving INMO 2006, and basically 5 questions we've already done of INMO 2006 as well. So today's video marks the end of the INMO 2006 question paper, because we are going to solve the last and the 6th question of INMO 2006. So guys, if you can want to watch the previous questions, you can watch it on our YouTube channel, है ना? उस पे पूरी playlist बनी हुई है. You can watch the previous papers questions as well. So guys, before starting, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I have done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics ever since graduating for various mathematics competition exams like IIT JEE, जिसके अंदर majorly आता है, then Maths Olympiads and KVPY, right? So आज का जो question है guys, it's more of number theory you can say, and a bit of inequalities it involves. Okay, so let me show you the question first. Okay. So guys, this is our question. I would like to request you guys first, guys, मतलब question पढ़ के I'm showing you the question, that is the 6th question of INMO 2006. Okay, please don't watch the solution straight away without solving the question. It is just my request to you guys. Guys, मतलब ऐसे सीधा solution देख के कोई फायदा नहीं होने वाला. Okay. So please try this question beforehand, before starting, before watching the solution. तो पॉज कर लो वीडियो को एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड गिव इट एटलीस्ट 1.5 आवर. ओके, इतना टाइम एटलीस्ट ये डिजर्व करता है कि आप उसको ट्राई दो, फिर ही सोल्यूशन देखो अगर नहीं हो पाता है तो, राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव दैट टाइम टू ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी फ्रॉम दैट सोल्यूशन एज वेल. ओके, कंपेयर टू अगर इफ यू वॉच द सोल्यूशन स्ट्रेट अवे, देन यू विल नॉट बी लर्निंग मच फ्रॉम दैट. ऑल राइट गाइज, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. आई होप सबने ट्राई कर लिया अच्छे से. सॉरी गाइज. सो नाउ गाइज, द क्वेश्चन इज प्रूव दैट इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4011 स्क्वायर. n जो वैल्यू है वो 4011 स्क्वायर से ग्रेटर देन और इक्वल टू है. देन देयर विल एग्जिस्ट एन इंटीजर l सच दैट n which is lesser than l square, okay, or you can say l square is greater than n but should be lesser than 1 plus 1 upon 2005 times of n. उससे छोटा होना चाहिए. So first of all, let us try to prove the first case. All right. So guys, जो आपका n है that is greater than equal to 4011 square, that you know. So guys, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ whether it is n which is to 4011 square या फिर उससे बड़ा नंबर भी होगा, the value of n will always lie between two consecutive squares. मैं बोल सकता हूँ ऐसा, right? There will be an integer m which is a natural number, okay, such that m square is lesser than equal to n. Okay, m square is lesser than equal to n and n is less than m plus 1 का square. So what does this mean? कि मैं बोल रहा हूँ n की जो वैल्यू आएंगी 4011 स्क्वायर से, जो भी बड़ी वैल्यूज हैं हर केस में, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n देयर विल एग्जिस्ट सम m so that n is between m square and m plus 1 square with an equality sign at m square. एग्जाम्पल लेते हैं. I'll show you through an example. Let's say n is 4011. Let's say आपका जो n वैल्यू है that is 4011, right? तो in that case your m value will be 4011 and m plus 1 अपने 4012 का स्क्वायर हो गया, करेक्ट. तो n तो उसके बीच में ही. बट व्हाट इफ n इज 4011 स्क्वायर प्लस 3, लेट्स से प्लस 3, तो भी m कितना हो जाएगा? फॉर दैट ऑल्सो दैट वैल्यू विल बी बिटवीन 4011 स्क्वायर एंड 4012 स्क्वायर. तो m की वैल्यू 4011 हो जाएगी, राइट. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि n की वैल्यू 4011 स्क्वायर या कुछ भी होगी, of course it will lie between sum of the two consecutive integers, right? m square and m plus 1 का square. And if it is a perfect square only, n की वैल्यू अगर perfect square है तो वो equality sign तो लिखा ही हुआ है हमने. In that case m will be equal to n, right? So guys, accordingly now let us try to solve. देखो यहाँ पे m square की वैल्यू n से तो छोटी है, that is not a problem, right? Less than or equal to.
सो गाइज लेकिन हमें ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, हमें एक ऐसा एल फाइंड करना है कि कैसे हो, क्या होगा ऐसे केस में एल, है ना, क्या एल होना चाहिए ऐसे में. सो गाइज लेट अस स्टार्ट विद दिस 1 + 1 अपॉन 2005, 1 + 1 अपॉन, यही वाला एक्सप्रेशन है ना जो हमें प्रूव करना है, 1 अपॉन 2005 टाइम्स n माइनस m + 1 का स्क्वायर करते हैं. वी आर पिकिंग अप एन एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने ये गाइस, है ना. दिस इज अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 1 + 1 अपॉन 2005 टाइम्स n माइनस m + 1 का स्क्वायर. बट गाइस मुझे तो पता है दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m स्क्वायर. So this whole expression, if I'm just substituting n as m square, wouldn't this expression be greater than equal to 1 + 1 upon 2005 times m square? अगर मैं n की जगह m रिप्लेस कर रहा हूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ा होना चाहिए ना, बिकॉज वी नो ऑलरेडी दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m स्क्वायर, राइट. सो माइनस m + 1 का होल स्क्वायर. आई होप दिस अप टू दिस स्टेप इट इज क्लियर, है ना. मैंने बस एक एक्सप्रेशन लिखा था, तो मैंने हिंट यहाँ से लिया था 1 + 1 अपॉन 2005 टाइम्स n माइनस एल स्क्वायर होना चाहिए था ना, जनरली वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने माइनस ऑफ m + 1 का स्क्वायर करने की कोशिश की है. ओके क्योंकि n से बड़ा तो एक m + 1 का स्क्वायर है ना, तो उसके बारे में ट्राई कर रहा हूँ प्रूव करने की. सो गाइस दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करेंगे गाइस हम, यू विल सी m² तो कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट विल यू बी लेफ्ट विथ 1 अपॉन 2005 टाइम्स m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1, राइट. तो इसमें गाइस आप क्या कर सकते हो, लेट्स टेक 1 अपॉन 2005 कॉमन आउट ऑफ दिस, राइट. वो आप कॉमन निकाल लो. इनसाइड यू विल हैव m² माइनस 4010m माइनस 2005, ये बन जाएगा आपके पास. सो आई कैन ट्राई टू कंप्लीट अ होल स्क्वायर एज वेल. सो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 2005. So guys, to complete the whole square, I would have to add plus 2005 का square and subtract it as well, so that it does not change the whole expression as well. So अब ये बन गया m minus 2005 का whole square minus 2005 का square minus 2005. This is what we are left with, right? Guys, अब बात सोचो, जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक एक्सप्रेशन से बड़ा है, राइट, is always greater than this expression for every corresponding values of m, right. So जो m की मिनिमम वैल्यू हो सकती है, अगर मैं उसको रिप्लेस करता हूं यहाँ पे, तो उससे तो बड़ा होगा ही होगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट. लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ m. तो अगर मैं m की मिनिमम वैल्यू राइट साइड पे डाल रहा हूँ, जिसके लिए कि राइट हैंड साइड मिनिमम एक्सप्रेशन होगा, राइट, तो उसके लिए भी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा ही होना चाहिए, राइट. So that inequality will be still be the same, right. So rather greater than sign हो जाएगा, because मैं m की वैल्यू एक डाल रहा हूँ. So guys m की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, since m is lesser than equal to n, m square is lesser than equal to n, so m की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी जब n मिनिमम होगा, which is 4011 स्क्वायर. तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4011. So 1 upon 2005, ओके, अंदर क्या हो जाएगा 4011 माइनस 2005 का स्क्वायर माइनस 2005 का स्क्वायर माइनस 2005, राइट. दिस इज व्हाट इट इज. सो गाइज ये क्या आएगा अभी, सी दिस 1 अपॉन 2005, दिस इज 2006 का स्क्वायर माइनस 2005 का स्क्वायर माइनस 2005. दिस इज व्हाट इट इज. सो गाइज अब आप देख सकते हो ये 2006 का स्क्वायर माइनस 2005 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, इट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इज 1, a प्लस b इज 4011. सो इसकी वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4011, राइट. सो 4011 माइनस 2005 लिखा हुआ है. सो एज अ होल दिस क्वांटिटी इज 2006, करेक्ट. सो लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट. सो गाइस ये बच्चे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, inside the bracket the value will become 2006. So 2006 divided by 2005, which is greater than rather 1, है ना, 1 से बड़ा है ये तो चलो greater than 0 तो है ना, right. So that means this particular expression is going to be greater than 0, correct.
व्हाट डज इट मीन, इसको लिख लेते हैं. सो गाइज इसका मतलब क्या हुआ, दैट m+1 का होल स्क्वायर, उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे. सो m+1 का होल स्क्वायर इज लेस देन, राइट, और उल्टा लिखते हैं, चलो बेटर समझ में आएगा. सो आई विल बी एबल टू राइट 1+1/2005 times n is less than, this quantity is less than m+1 का स्क्वायर, राइट. ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया. सो गाइज अब हमारे पास ओवरऑल लिखने के लिए क्या है, सो लेट मी राइट इट हियर, राइट. मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड पे. तो गाइज हमने स्टार्ट यहाँ से किया था ना. सो सी योर n वैल्यू, तो m इज लेसर, m+1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन n, दैट इज फाइन, राइट. सो m+1 का स्क्वायर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, that n is greater than m+1 का square, but m+1 का square is greater than this expression, but this expression sorry less than sign आएगा, sorry I wrote it wrong here, this is less than sign, right, it went on to the right hand side, so this is sign. So m+1 का square is lesser than this, so n is less than m+1 का square, but which is also further lesser than 1+1/2005, right, times n. and ये हमें इसी टाइप का कुछ प्रूव करना था. so which means what, that हमें कैसा l चूज करना है, in every case we have to choose an l like which is of the form m+1 का square, because then हमने अभी डिस्कस किया था that we can always find such an m for which n will be greater than equal to m square and less than m+1 का square, ये हमने अभी डिस्कस किया था. So for every such kind of a case, if you are able to find an m, आपका l का वैल्यू क्या होगा, m+1 के स्क्वायर जितना होना चाहिए, right. So we have proven that there exists an l which would be basically m+1 whole square in such cases, right, which will satisfy the criteria because m+1 का square is greater than n and less than 1+1/2005 times n. So this is going to satisfy the concept criteria और inequality, ठीक है, ये satisfy कर रहा है. So a part is proven guys, for a part तो हो गया आपके पास, right. So now let us have a look at the b part. तो guys b part read करते हैं भी, a part हो गया, b part पे आते हैं. Find the smallest positive integer m, capital M, for which whenever an integer n is such that n उस m से बड़ा है, तो जो आपको inequality अभी आपने प्रूव की थी वो true hold रहे, that should become true always. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट में हमारे पास था 4011 का स्क्वायर, उसके लिए तो हमने प्रूव कर दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट. तो हमें अब उसकी n की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में तो गाइस 4011 स्क्वायर से बड़ा था ना, हमें बेसिकली इस बार यही प्रूव करना है. हमें एक ऐसी वैल्यू बतानी है उसकी मिनिमम कि अगर n उस वैल्यू से बड़ा होगा तो भी आपकी ये इनइक्वालिटी प्रूव कर सको आप, ठीक है. सो लेट अस ट्राई गाइस, 4011 स्क्वायर के तो लिए तो हमने करी थी, तो उससे बड़ा कुछ भी होगा तो उसके लिए तो जस्टिफाइड ऑलरेडी डन है. सो बेसिकली उससे कम होगी कोई वैल्यू वो, राइट. सो गाइस फॉर द बी पार्ट लेट अस ट्राई विद 4010 स्क्वायर, बी पार्ट के लिए, ओके. लेट अस स्टार्ट इफ दैट m वैल्यू, ट्राई करके चेक करते हैं, देखो उसी से थोड़ा आइडिया लगेगा. व्हाट इफ m इज 2010 का स्क्वायर, तब क्या होगा. देन द इक्वेशन विल लुक लाइक n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2010 का स्क्वायर. एक परफेक्ट मतलब पिछला परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, पहले 4011 का स्क्वायर था, सॉरी. सो अभी 4010 कर देते हैं, सॉरी, राइट. सो नाउ लेट अस पिक n एज 4010 का स्क्वायर, फाइन. सो गाइज अब क्या होगा, अब वो इनइक्वालिटी को चेक करते हैं, क्या कोई एल स्क्वायर ऐसे एग्जिस्ट कर पा रहा है, ठीक है. तो देखते हैं एल काउंट कैसा होना चाहिए. एल स्क्वायर शुड बी बिटवीन n एंड 1 प्लस, ओके, 1+1/2005 को लिख सकते हैं 2006/2005, राइट, टाइम्स n, इन दोनों के बीच में होना चाहिए. सो लेट अस पुट द वैल्यूज. तो मिनिमम वैल्यू n को 4010 ही पुट करके देखते हैं, राइट. सो 4010 स्क्वायर अगर मान रहे हैं तो उसके लिए भी सेटिस्फाई होना चाहिए. सो दिस कम्स 4010 का स्क्वायर, एल स्क्वायर शुड बी बिटवीन 4010 का स्क्वायर इन एंड लेसर देन इक्वल टू 2006/2005 इंटू 4010 का स्क्वायर.
सो गाइस अगर आप देखोगे इन द राइट हैंड साइड, मतलब जिससे छोटा है एल स्क्वायर, 2005 एक फैक्टर तो कैंसिल कर देगा उसको, दिस विल कैंसिल वन ऑफ द फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 4010 को वो 2 से डिवाइड कर देगा. सो बेसिकली नाउ यू विल से 4010 का स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2006 इंटू 2 हो गया 4012 इंटू 4010, राइट. सो गाइज इसको मैं सॉल्व करने का तरीका ऐसे समझता हूँ. I will write 4010 as 4011 minus 1, 4012 को 4011 plus 1, right? ऐसा लिख सकते हैं दोनों को, a plus b into a minus b वाले आइडेंटिटी क्रिएट कर देंगे. So 4011 plus 1 into 4011 minus 1. So I'll write this expression as 4011 plus 1 into 4011 minus 1, right? So this will give me 4011 का स्क्वायर minus 1. So guys अब ध्यान से देखो आपके पास इनइक्वालिटी बन के आ गई है. It has become कि एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है, there is a perfect square of an integer L which is between 4010 square and 4011, जस्ट उसके अगले स्क्वायर का -1, उसमें से भी -1 कर दिया है ना. सो यू कैन थिंक ऑफ दिस 4010 के स्क्वायर के बाद जस्ट अगला होल स्क्वायर क्या होगा 4011 का स्क्वायर. बट ये तो ये कह रहे हैं कि L स्क्वायर इज बिटवीन 4010 स्क्वायर एंड 4000, उसके जस्ट अगले स्क्वायर में से भी -1 कर दिया कि उसके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर बताओ. So guys, of course, this equation is going to give you no solution, right? No solution for of L or for L, right? कोई solution नहीं आएगा integer solution इससे. So इसका मतलब guys m equal to 4010 square does not work. तो हमने ये तो find कर लिया. But guys यहाँ से इसकी solving से मुझे एक hint मिल रहा है that 2006 times n, right? 2006 times n या फिर 2006 अपॉन 2005 टाइम्स 4010 का स्क्वायर इज वर्किंग आउट टू बी 4011 स्क्वायर -1, राइट. तो हम क्या करते हैं, क्लोज हैं हम उस चीज के, देखो क्योंकि अगर हमने 4010 का स्क्वायर लिया तो बिल्कुल जस्ट 1 का डिफरेंस बच गया वहां पे. सो लेट अस पिक 1 ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी. सो व्हाट इफ लेट m इक्वल टू 4010 का स्क्वायर प्लस 1, जस्ट अगला इंटीजर उठा लेते हैं इससे, तो +1 वाला इंटीजर उठा लिया. So this implies n is greater than equal to 4010 square plus 1, है ना, m से बड़ा होना चाहिए था. तो इसके लिए भी सेम चीज, यही चीज करके देखते हैं. So n is less than L square is less than 6 upon 2005 times n. ये हमें प्रूव करना है. Okay, let me scroll down a bit. So guys n की वैल्यू पुट करते हैं. So n वैल्यू इज 4010 स्क्वायर प्लस 1 लेस देन L स्क्वायर लेस देन 2006 अपॉन 2005 टाइम्स 2010 स्क्वायर प्लस 1, राइट. ये बन गया. So guys एक बात देखो, जब आप एक्सपैंड करोगे अगेन, सो दिस इज 4010 स्क्वायर प्लस 1 लेस देन L स्क्वायर लेस देन. सो गाइस देखो अभी हमने कैलकुलेशन किया था तो दोबारा कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है. सो दैट इज यू हैव फाउंड दैट 2006 अपॉन 2005 टाइम्स 4010 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू बन के क्या आती है 4011 स्क्वायर -1. सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन विद दिस, आपको क्या मिलेगा 4011 स्क्वायर -1 प्लस ये 2006 अपॉन 2005, 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, सो प्लस 2006 अपॉन 2005. सो गाइज अब आप देख सकते हो दैट you are getting that L square should be between 4010 square plus 1 से लेके 4011 square plus 1 upon 1005 2005, right? Sorry. So guys अब ये, लेकिन इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा ना. ओके अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो, इसमें तो L की वैल्यू निकल के आएगी ना, isn't it? Isn't this equation valid that you will get an valid value of L from this? यहां से तो आपकी L की एक वैलिड वैल्यू आ रही है, L इक्वल टू 4011 का स्क्वायर, ओ सॉरी 4011 इटसेल्फ, है ना. यहां से तो वो वैलिड है बिकॉज यहां पे आपको क्या सोल्यूशन मिल रहा है दैट L स्क्वायर, किसी एक नंबर का स्क्वायर जो है दैट शुड लाई बिटवीन 4010 का स्क्वायर प्लस 1, उससे बड़ा होना चाहिए. तो 4010 नहीं हो सकता, बट वहां से शुरू होके वो 4011 स्क्वायर प्लस कुछ जा रहा है आगे, प्लस 1005 हो गया 1 upon 1005, तो कुछ तो बड़ा हो गया वो उससे, उसके बीच में. सो 4011 इज लाइंग इन बिटवीन दैट इंटरवल.
और a की वैल्यू लाई कर रही है, तो L will can take the value of 4011 in such case, meaning that guys the minimum value of m that you can get वो क्या आएगी, ये वाली, क्योंकि 4010 के होल स्क्वायर के लिए तो वैलिड नहीं आ रहा, बट 4010 का स्क्वायर प्लस 1 के लिए वैलिड आ रहा है. सो दिस विल योर फाइनल आंसर फॉर द बी पार्ट, कि m की वैल्यू क्या आएगी, वो मिनिमम वैल्यू, जिससे कि n अगर बड़ा होगा तो उस वो इनइक्वालिटी ट्रू होल्ड होगी, और यू कैन से देयर विल बी एग्जिस्टिंग सम L फॉर दैट इनइक्वालिटी. So that will be your answer guys, 4010 square plus 1. That is the answer for B part. Okay. So guys, I hope सबको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना. तो दोबारा देख सकते हो, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज ट्राई टू वॉच इट अगेन, मतलब तब बेटर समझ में आ जाएगा अगर ऐसा लग रहा है आपको. ठीक है. एंड ट्राई सॉल्विंग इट, नॉट ट्राई बेसिकली, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन अलॉन्ग साइड गाइज, मतलब अपने आप साथ साथ में कॉपी पे साथ साथ में सॉल्व करो खुद से सोच सोच के. ऐसा नहीं है कि जस्ट व्यू कर लिया, वॉच कर लिया आपने सोल्यूशन एंड इट्स डन, और कुछ नहीं लिख के सोचा. So then again that will not help you at all. Okay. So in case you were not able to solve it earlier, please इसको साथ साथ में लिखते लिखते सॉल्व करो, वीडियो देखो पॉज करते करते आराम से. It will be very very beneficial for you guys. ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत वीक स्ट्रांग हो जाएंगे. Okay. All right. That's it guys. I hope you guys like this video. So guys, अगर आपको मजा आया please you can like this video and you can subscribe to our channel so that आपको जो भी अपडेट्स नई वीडियोस में आती जाएंगी वो आप देख सको. ओके, दैट यू गेट द अपडेट्स टू ऑल द गुड कंटेंट जो हम ट्राई कर रहे हैं प्रोवाइड करने का. सो गाइज आई होप मजा आया. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ INMO 2006-7, राइट. So till then keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.